Good morning, everyone. Um, uh, uh, सर सर जब आप भी पहली बार स्टेज पे आए होंगे तब आपने भी ऐसे कुछ किया होगा। आप भी हिचकिचाए होंगे, लेकिन आपने उसे इम्प्रूव किया। कैसे किया? धीरे धीरे सीखते सीखते किया। That was today's our topic is about continuous learning. Imagine that if our ancestors had stopped learning after discovering fire, there will be no internet, no modern medicines, no smartphones and no electricity. Every breakthrough of human history begins with someone willing to learn something new. I am Nehali Naugare. I am here to talk about the great power of continuous learning with my team Learnfinity, the habit which has shaped our past, transformation in present and well defined our future. Now I want to shift my mic to Jayashree. Thank you. Thank you, Nehal. Good morning, everyone. I am Jayashree Pandit. Today, take a look at this journey. It shows how humanity has progressed, not because we know everything from the beginning, but because we never stop learning. It all starts with cave painting. This painting becomes the first way of sharing knowledge and experience. Then come first wheel. It may look simple today, but it completely changed trade, transportation and daily life. As learning continues over generation, we reach space technology. Sending satellites, astronauts and rockets into the space was only possible because scientists keep building knowledge. And today we are living in an era of artificial intelligence, AI. AI is helping us in education, healthcare, business and many other fields. Everything you see around you, from cave painting to artificial intelligence and from first wheel to space technology, because humanity never stopped learning. But even this is not the end, it's another step in our learning journey. Now let's understand why continuous learning is important in today's world. We are living in a fast changing era where industries, technology, skills are constantly evolving. The knowledge we have today are not enough for tomorrow. That's why continuous learning is essential. It helps us to adapt new situations, improve our ability and stay confident in facing challenges. Whether we are student or professional, continuous learning helps us to grow, succeed and prepare for future opportunities. Now I would like to call Garv to continue forward. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गर्वनीश जैन एंड आप सब हेनरी फोर्ड को जानते होंगे, पर उनका एक कोट एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड वेदर इट्स 20 और 80, ये कंटिन्यूस लर्निंग के लिए एक बहुत परफेक्टली कैप्चर करने वाला कोट है, जो ये बताता है कि आप कितने भी एज के क्यों ना हो, आपको सीखना नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सीखना रोक दिया और आपने अडेप्ट नहीं करा चेंजेस के हिसाब से, तो आप पुराने हो, आप ओल्ड हो। कंटिन्यूस लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी रोकनी नहीं चाहिए। आपकी क्यूरियोसिटी ही आपको चेंज करने के लिए मजबूर करती है, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मजबूर करती है। आपका अडेप्टेशन ही आपको आगे सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। इलॉन मस्क एक ग्रेट और पावरफुल एग्जाम्पल है कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। उन्होंने फॉर्मली कभी रॉकेट साइंस पढ़ा ही नहीं था, पर उन्होंने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी, नोटबुक्स पढ़ी, एक्सपर्ट से बात करी और आज वो दुनिया की सबसे फेमस और स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे आगे चलने वाली स्पेस एजेंसी के मालिक है, स्पेस एक्स। उन्होंने पहली बार नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ करी जिनका उनको कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने पेपल बनाया, जो उनकी सबसे पहली ऐप था और बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था, जो उन्होंने स्टार्टिंग में ही $1 बिलियन में बेचा था। उसके बाद उन्होंने टेस्ला के अंदर इन्वेस्ट करा था और आज वो उसके ओनर भी है। और अब जब उन्होंने रॉकेट साइंस में कुछ भी नहीं पता था, उसके बाद से पढ़ा और आज वो स्पेस एक्स के मालिक है। और यही हमें बताता है कि कंटिन्यूस लर्निंग कितनी हेल्प करती है हमें। नाउ आई विल लाइक टू कॉल माय ग्रुप लीडर एंड माय फ्रेंड मालविका। Hello everyone. So, you guys know who she is? Yeah, almost everyone knows who she is. She is the favorite author of almost everyone present here, J.K. Rowling. As we put her image here in this slide,
You guys might think, why her? What's so special about her that we took her as an example for this? Let me tell you. It is because she wasn't born with the intellectual, with the mindset that she is going to create a fictional world that almost everyone will love. But today, it's something that is connected with our heart. Harry Potter series everyone knows. So, यही हमारा मानना है. You know the first book that she has written, the first manuscript of Harry Potter, it was rejected by 12 publishers before it was actually published. तो कैसे? राइटर तो पैदा हुई नहीं थी, राइटर पैदा नहीं हुई थी वो, but she was an avid learner from her childhood. Since her childhood, she used to love reading, and that's what we need to imply here. कंटिन्यूस लर्निंग ये नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं, हमारा वो मानना ही नहीं है. कंटिन्यूस लर्निंग से हमें ये इम्प्लाई करना है यहाँ पे कि आप कुछ नया सीख रहे हैं. कैसे सीख रहे हैं? हर पल कुछ नया सीख रहे हैं. और इन्होंने वही किया था. इन्हें अपनी राइटिंग स्किल्स से सीखा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, सीख कर आगे बढ़ी और आज पब्लिश करी. एंड शी इज़ द ओनली बिलियनियर हु इज़ ऑथर, ओनली बिलियनियर हुज एन ऑथर. तो क्या ये चीज़ हमारी सीए की जर्नी में, इसका हमारी सीए की जर्नी से क्या लेना देना? ऑफ कोर्स लेना देना है, क्योंकि इफ़ यू आर लर्निंग सीए, इफ़ यू एवरीवन हियर इज़ अ सीए स्टूडेंट. सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ नॉट समथिंग दैट अचीव्ड ओवरनाइट. आप एक रात पढ़ेंगे, दूसरी रात सीए नहीं बन जाएंगे. सीए की जर्नी में इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, जिसमें हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है. सीए की जर्नी में हमें हर स्टेज पर नए कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, चेंजिंग लॉज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है. और ये सब ऐसे ही नहीं होता. ये सब तब होगा व्हेन यू हैव अ विल टू लर्न, व्हेन यू हैव अ विल, जब आपके पास एक विल होगी कि आपको सीखना है. और धीरे धीरे जब हम सीखते हैं, ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज तक लिमिटेड नहीं रहता, ये आगे चल के प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए तो सीए की जर्नी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने तक लिमिटेड नहीं है. इट्स अबाउट बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. कंटिन्यूस लर्निंग इज़ अ की वे दैट वुड लीड यू टू योर प्रोफेशनल ग्रोथ. जस्ट लाइक ह्यूमैनिटी हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लर्निंग कंटिन्यूसली, एक सीए स्टूडेंट ही प्रोग्रेस और शी प्रोग्रेसेस बाय लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. अब ये कैमरामैन भैया है, इन्हें पहले दिन तो कैमरा चलाना आता नहीं था. इनने सीखा कैसे चलाते हैं, कैसे लेते हैं, और सीखने के वजह से आज वो यहाँ पे खड़े होकर हमारा वीडियो ले रहे हैं. सो जस्ट लाइक दिस, आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ यू, मैम, सर, एवरीवन, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, हैव यू लर्न समथिंग न्यू टुडे और फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज? या व्हाट सर? Many things. It is not about one learning. Every Yeah. day I'm learning, and basically what I'm learning to get inspired by you, Oh yeah. Gen Zs. Okay. So sir is learning to get inspired by Gen Zs. That's what I want to imply here. Continuous learning is something that you learn every hour, every minute, every second, with no age bar, and at every phase of your life. So here, Malvika, I'm signing off, and I would like to invite Krishna for the further continuation. Thank you. So I am here to share you some mistakes about continuous learning. So first is comfort zones. Comfort zones means हम हमेशा नई चीज़ें हमें नई चीज़ें सीखने का डर लगता है. हम सिर्फ फैमिलियर चीज़ें ही करते रहते हैं, हम कुछ नया ट्राई नहीं करते, और जब हम कुछ नया ट्राई नहीं करते तो हमारी ग्रोथ नहीं होती. नेक्स्ट इज़ फिक्स माइंडसेट. फिक्स माइंडसेट मीन्स हम ऐसा हम कभी सोचते हैं कि हम चेंज नहीं हो सकते. जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अब एक लड़का था, उसने एक एग्ज़ाम दी, वो एग्ज़ाम में वो फेल हो गया, तो उसने सोच लिया कि मैं एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर पाऊँगा, या मेरा इतना टैलेंट नहीं है कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ. तो वो उसने एक फ़िक्स माइंडसेट बना लिया कि मैं ये नहीं कर सकता. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही हमारे लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ मिस्टेक. फियर ऑफ मिस्टेक्स मीन्स कि हमें ऐसा लगता है कि यार अगर मुझसे गलती हो गई तो. अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि समझो हमारा सबका प्रेजेंटेशन था, ऑलमोस्ट तो सबका हो गया, लेकिन सबको प्रेजेंटेशन के पहले ऐसा लग रहा था कि मुझसे स्टेज पे जाके गलती हो गई तो मैं नहीं बोल पाया, तो
या जजेस ने हमें क्वेश्चन पूछा और हमें आंसर नहीं आया तो हमें इसी फियर के वजह से हम कुछ नया ट्राई नहीं करते। और जब हम कुछ नया ट्राई नहीं करते तो कंटिन्यूस लर्निंग हमें करनी चाहिए। जैसे कि अब इससे लर्निंग और मिस्टेक ही हमें इम्प्रूव करता है। हम कहाँ मिस्टेक हमें बताता है कि हम कहाँ इम्प्रूव हो सकते हैं, हमारी गलती बताता है। नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस बिकम डेंजरस। ओवर कॉन्फिडेंस बिकम डेंजरस। सो अब हम ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ ऑलरेडी आता है, मैं सब कुछ पहले ही कर चुका हूँ, तो इसी वजह से हम हमारी जो लर्निंग है उसे हम रोक देते हैं। हम दूसरों से फीडबैक लेना बंद कर देते हैं, दूसरों से कुछ नया सीखना हम बंद कर देते हैं। तो अब हमने इसके मिस्टेक्स तो देख लिया, अब इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो देयर आर 4 कॉमन सोल्यूशन। फर्स्ट इज स्टे क्यूरियस। हमें हमेशा नई चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, नई चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। जैसे कि अब सीए प्रोफेशन में रूल्स, लॉज एंड टेक्नोलॉजी हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो कुछ नया सीखिए। जैसे कि अब हम कुछ नया सीखते रहेंगे तो हमारी ग्रोथ एंड हम अपडेटेड रहेंगे। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस फीडबैक। एम्ब्रेस फीडबैक मीन्स जैसे कि टीचर, सीनियर्स या कॉलेजियर्स हमें जो फीडबैक देते हैं वो फीडबैक को हमें निगेटिवली नहीं लेना चाहिए, टेक देम पॉजिटिवली। बिकॉज अगर हम उसे पॉजिटिवली लेंगे या तो हमें फीडबैक बताता है कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली। प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली मीन्स हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। हम अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। जैसे कि अब हमारी कल एग्ज़ाम है और हम एक दिन पहले रट्टा मार रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। हम अगर साल भर से वो बुक अगर पढ़ते आ रहे हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम हमारी ओन वर्ड और पूरे बुक के लैंग्वेज में हम लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट इज स्टे हम्बल। स्टे हम्बल मीन्स हमने लाइफ में कितना भी सक्सेस अचीव कर लिया हो तो हमने ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए अब मेरा हो गया, बस हो गया, अब इतना मेरे लिए ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सो स्टे हम्बल मीन्स कि हमने लाइफ में कितना भी सक्सेस अचीव कर लिया हो लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब मेरा बस हो गया, अब मैं इसके आगे नहीं करूँगा। सो नेवर एवरी चैलेंजेस जस्ट वी डिस्कस हैज़ अ सोल्यूशन। थिंग्स ओनली कि the only things which we has willingness to learn, unlearn and learn again. So to overcome the next dimension to this topic, let's welcome Piyush. हेलो, बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई, तो कहानी सुनोगे? सुन लो इन्फॉर्मेशन वापस। इन्फॉर्मेशन ही सुनोगे क्या? इन्फॉर्मेशन ही सुनोगे क्या वापस? थोड़ी कहानी सुन लो। तो ये कहानी एक स्टूडेंट की है जो सीए एग्ज़ाम दे रहा था पर वो फेल हो गया, पर उसने वहाँ से हार नहीं मानी। वो फेल होने के बाद भी वो फेल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, उसने सीखा। He kept learning about what were his mistakes and he kept learning what were his mistakes. उसने वापस से अटेम्प्ट दिया एंड ही बिकेम अ सीए। उससे हमें ये पता चलता है कि सीए फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस बट इट इज़ अ प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। आगे इस स्टोरी में थोड़ा सा अभी हम आगे जाते हैं। अभी ये 2009 की बात है, सत्यम कंप्यूटर का स्कैम हुआ था। उसमें सब बुक्स फर्जी थे, अकाउंटिंग बुक्स फर्जी थे, बिलियंस लॉस्ट, ट्रस्ट ब्रोकन। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अपॉइंट किया। ही वॉज नन अदर देन लेट सीए TN मनोहरन। उन्होंने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ऑडिट्स नहीं देखे, उन्होंने नंबर्स नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने वो क्यूरियस रहे ट्रुथ जानने के लिए एंड उन्होंने IT सिस्टम्स, फॉरेंसिक लॉग्स इनमें ऑडिट किया एंड ही स्टेबलाइज्ड द कंपनी इन जस्ट 100 days. अभी दिस वॉज द पीक ऑफ हिज प्रोफेशन, बट उन्होंने वहाँ पे ग्रो करना स्टॉप नहीं किया. ही अपस्किल्ड हिमसेल्फ इन बैंकिंग रेगुलेशंस,
crisis management and became the chairman of Canara Bank. इनकी स्टोरी से हमें कुछ ये वैल्यूज सीखने को मिलती है और हमें एज अ सीए सीखने को मिलता है कि सीए इजंट जस्ट अ फिनिश लाइन बट इट्स अ परमिशन टू लर्न मोर इन लाइफ. तो अभी मैं जजेस से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैम. अगर आपको सब पता हो, एवरी नॉलेज यू हैव, तो क्या आपको जीने में मज़ा आएगा? आपको पहले दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन अच्छा लगेगा, पर जैसे आप बात करते रहोगे लोगों से तो आप बोलोगे यार ये तुम्हें को पता है, पहले से ही पता है, तो आपको जीने की वो चाहत नहीं बचेगी, आप सीख नहीं पाओगे कुछ, आपको वो डोपामाइन ही हिट नहीं होगा. तो हाँ, आपको डोपामाइन ही हिट नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाओगे. तो दैट्स द लर्निंग लेगेसी. आपको सीखते रहना है, आपको सब जानना है. इट्स नॉट कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको सीखते रहना है. एंड अभी मैं ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. किस किसने ऐसा सोचा है कि मैं मंडे से पढ़ूंगा? हाथ ऊपर करो, क्रेडिट दे देंगे हम तुमको. अब वो मंडे आया है क्या कभी? हैंड्स तो नीचे हो गए सबके. बहुत सारे लोगों के हैंड्स नीचे हो गए. तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि कंटिन्यूअस लर्निंग परफेक्ट टाइम के बारे में नहीं है. आपको परफेक्ट टाइम के बारे में मतलब परफेक्ट टाइम पे आप करो वैसा कुछ जरूरी नहीं है. आपको स्टार्टिंग टुडे से करनी है. आज से ही आप सीखना शुरू करो तो आप कंटिन्यूअस लर्न कर पाओगे. आपको टाइम को परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट टाइम को नहीं ढूंढना है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू कॉल ऑल ऑफ माई टीममेट्स ऑन द डैश. Thank you very much. Judges, if the panel had any questions, you can ask, and all the audience also, if there are any questions. आपका पीपीटी बहुत अच्छा था. रेस्ट ऑफ द पीपीटीज में सबने फोटोज लेके ऐसे ही डाल दिए थे और यहाँ पे आपका इंटेंशनल लग रहा था बिकॉज यू क्रिएटेड अ होल उसके आजू बाजू का जो था टाइप. हाँ, तो पीपीटी किसका बनाया था? अच्छा, गुड. उसमें दिख रहा था कि इंटेंशनली आपने फोटोज डाले. बहुत सारे लोगों ने मतलब पीपीटी जब बनाए थे तो फोटोज में चिपका दिए थे. दैट्स हाउ यू मेक पीपीटी. ठीक है. सेकंड, बहुत अच्छा बोला आपने क्योंकि आपको आइडिया आपको पता था क्या बोलना है, फिर आपने आगे खुद से बोला. दैट्स क्वाइट ग्रेट. और तूने उल्टा किया. तू बहुत अच्छा बोल रहा था. तू बहुत अच्छा बोल रहा है जब तुझे पता है क्या, बट जो टॉपिक पर था उस पर ढंग से नहीं बोल पाया. बट यू कैन स्पीक क्वाइट वेल. हमारे पीपीटी में आपको इसके क्या बोलते हैं इसको टेम्पलेट के नाम पे सिर्फ वो ब्राउन पेज है, बाकी सब कुछ डाला हुआ है. गुड. तो ये सब हाँ, वो सब डाला हुआ है एलिमेंट से लेकर कैमरा से. पीपीटी वैसे ही बनाते हैं. जस्ट टेक अ सिंपल बैकग्राउंड उसके Yeah, on the simple background because we didn't need any white thing. That's why. You guys are looking amazing. Thank you, ma'am. So the best part is आपने यहाँ पे references भी mention किया है. You have mentioned the name also and the picture also and Instagram account. That is very important for me to track it down. Yeah. So I just want to know your reputable educational websites. So can you name? Yeah, I can. There is a website from HTTPS and it's also it's a website from where you can use any type of AI. For it is like ChatGPT, Gemini, Blackbox AI, any AI. There are all kinds of AIs available on that website. The name of the website. Its name was very long, but I know that website it is, and personal research is also referred to there only. We have gone to that website. That's why. All the content has come from there only, and personal research also includes. And books. What about the books? Books, we included that books because we read, like Elon Musk, there are books for Elon Musk, and also, Harry Potter. So you guys read it and then like. No, we didn't read it. But She read it. I have read it because, I'll say it. I have read it earlier. It was her information. Okay. Thank you. आपने प्रेजेंट सभी ने बहुत अच्छा किया. कहीं ना कहीं कुछ थॉट में अपन बोलने के इसमें अलग थॉट आ जाता है तो वहाँ रुक जाते हैं कि अपना माइंड प्रोसेसिंग जो होता है वो थॉट्स को कम करने से ही फास्ट चलेगा.
मैं मेरा डेटा मोबाइल का कम करूंगा तो वो फास्ट चलेगा। देखो मोबाइल का डेटा बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसकी तो लिमिटेशन है, तो उसके वजह से हुआ है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया है, सारा टीम वर्क भी आपका अच्छा था, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, टॉपिक भी डिफिकल्ट है, ऐसा इजी नहीं है बोलना। तो मैं ये पूछना चाहता, आप लोग कैसे लर्निंग करते हो, है ना? आपका आप कैसे कंटिन्यूस लर्निंग कैसे रहते हो कि मैं कंटिन्यूस लर्निंग मोड में हूँ, वो आप कैसे रहते हो? हम ट्राई करते हैं कि हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखें। जैसे आज आपने बताया, हमने कुछ ना कुछ सीखा। When फर्स्ट टाइम से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, एवरी आवर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज हमने देखा कि इसका ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज जेलसी, वी शुड लर्न दैट वी शुड आल्सो ड्रेस लाइक दिस। in every instant we should learn how we should जैसे मैं अटका, अभी बाद में मैं सीख लूंगा उससे। ऑब्वियसली है वो अटकना तो हर किसी ना किसी को है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो कोई अरे मैं वही बोल रहा हूँ, थॉट्स अगर आपके चैनलाइज हो तो फिर नहीं अटकते हो आप। अरे मेरा ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने आपको बोला कि आप स्टडीज में भी जैसे एग्जाम लिखते लिखते आपके थॉट्स एकदम शांत है, आपके चैनलाइज थॉट्स है, फोकस एकदम आपका चैनलाइज्ड है, एनर्जी आपकी चैनलाइज्ड है, तो आप अटक ही नहीं सकते हो एग्जाम में। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये अटकने की इस ऊपर बोल रहा हूँ कि टॉपिक के ऊपर से नहीं, फॉर एवरीबडी सबने कुछ ना कुछ आज मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि थॉट्स इतने ज्यादा है। और सोशल मीडिया की वजह से पहले ना अपन देखो हर कास्ट कम्युनिटी में वो पूजा पाठ और करते थे, यानी तो स्पिरिचुअल थे। हम लोग रिलीजियस है, बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसको डिफरेंस समझ में आ गया वो जीत गया। दुनिया की जंग वही जीत सकता है जिसको समझ में आ गया कि बीइंग रिलीजियस क्या और बिना स्पिरिचुअल क्या। आप मंदिर में जाते हो, मैं ये थोड़ा टॉपिक से ना बोल रहा हूँ, सबके लिए जनरल बोल रहा हूँ टॉपिक। थोड़ा जीवन में मेडिटेशन करेंगे, 10 मिनट्स अपने थॉट्स को चैनलाइज करेंगे, सांसों को चैनलाइज करेंगे, एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, तो आप अलग एक वाइब्रेशन, अलग एक ऑरा और एक अलग फ्रिक्वेंसी पे कनेक्ट कर जाओगे। तो मैं सीरियसली बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूट से, आपके इसमें से AIR 1 निकल नहीं सकता है। अकोला से AIR 1 निकल सकता है, ऑल इंडिया रैंकर फर्स्ट अकोला से CA/M² से 100% आ सकता है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, मैनिफेस्ट किया, तो आ सकता है। उसी के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड। अब कंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर आते हैं तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में आप आ जाए कि जो हो रहा है वो मैं उससे लर्न करूंगा। आज मैं अटका, उससे भी लर्न करूंगा। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया, उससे भी लर्न करूंगा। तो आपका वो थॉट्स चैनलाइज रहे तो ही, अगर आप कंटिन्यूस सबकॉन्शियस माइंड को अंदर जाना जरूरी है। लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग सबकॉन्शियस माइंड से हो सकती है। तो ये थोड़ा सा हेवी डोज है, लेकिन जिसके समझ में आया वो काफी कुछ ले सकता है। हमने ये सीखा कि लाइफ हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाती है, सो वी शुड जस्ट हैव अ वेरी गुड। और अच्छा था मही का, मालवी का आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। ग्रेट जॉब, थैंक यू। थैंक यू सर।